الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج مجھے لب کشائی کا جو موقع ملا ہے حاضری کے طور پہ، وہ چند الفاظ عاجزانہ طور پہ آل نبی آل رسول کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے آل نبی آل رسول کی پیاری بیٹی بہن سیدہ طیبہ طاہرہ زینب سلام اللہ تعالی علیہا کا ایک جذبہ دین اور جذبہ شوق اور عشق جو کہ تنہائی اور قید میں بھی برقرار رہا، آج میں ان کی شان کو آگے رکھتے ہوئے تھوڑا سا حاضری کے طور پہ ذکر کرنا چاہ رہی ہوں۔ تو میری بہنیں ذرا غور سے سنیں اور آپ اور مجھے ان کے پیارے نقش قدم پہ چلنے کی رب ذوالجلال توفیق عطا فرمائے۔ تو جب یزید کا دربار لگا ہوا تھا، وہاں پہ کائنات کے مالک کی پیاری نواسی نے خطبہ ارشاد فرمایا، تو اس کے بعد جب وہ محفل جو تھی، وہ دربار یا جو کچھ اس نے ایک اپنا پراپوگنڈا بنایا ہوا تھا، اس کے مطابق وہ برخاست ہو گیا، تو پھر 900 میل کا سفر طے کرنے والی شخصیتیں جو کہ سفر کر کر کے پیدل تھک چکی تھی، پھر ان کے اوپر ایک اور ایسا امتحان آ گیا کہ ان پاک ہستیوں کو، سید زادیوں کو اور حضرت امام علی مقام امام زین العابدین علیہ السلام جو کہ بیمار تھے، ان سب کو ظالم نے یہ کہا کہ قید خانے میں ان کو بند کر دو۔ جب آپ کو قید خانے میں بند کیا گیا تو یزید ظالم کا یہ ایک نظریہ تھا کہ بس میں نے دین اسلام کی آواز کو، حق کو بند کر دیا ہے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ جہاں حق ہو، وہ حق سچ جو ہے وہ ابھر کے نہ آئے۔ وہ کتنا نادان تھا، اس کو یہ سمجھ نہیں تھی کہ اللہ والے جہاں قدم رکھ لیتے ہیں وہاں اس کی رحمت جو ہے وہ انہیں ڈھانپ لیتی ہے، اور وہاں اللہ کی رحمت کا یعنی اس جگہ کو اللہ تعالیٰ کائنات کا نور بنا دیتا ہے۔ تو یہ سوچ کر یزید جو ہے وہ سکون کی نیند سویا رہتا کہ اب بس میرا کام ہو گیا، اب وہ آواز کبھی نہیں ابھرے گی جس آواز نے مجھے قبول نہیں کیا۔ اور جب رات کو پہرے دار سونے کے قریب ہوتے، جب انہیں اونگ آنے لگتی اور لوگ اپنے گھروں میں آرام کر رہے ہوتے، تو اس ویران قید خانے میں امام علی مقام امام سجاد علیہ السلام جو تھے، ان کی زبان مبارک سے اللہ اللہ کی جو آواز آتی، وہ جب ان کی جو زنجیریں تھیں، جب وہ آپ اٹھتے، جب ان کی چھنکار پیدا ہوتی تو چھنکار نہیں بلکہ اس کے اندر اللہ اللہ کی آوازیں بلند ہوتی۔ قید خانہ میں وہ پاک بیبیاں، ان کے چہرے چمک رہے تھے۔ وہ قید خانہ نہیں رہا تھا، بلکہ وہ قید خانہ تو ایک عالمی مدرسہ اور یونیورسٹی بن رہا تھا، جس کی استاد کوئی اور شخصیت نہیں تھی
बल्कि आपके और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी नवासी सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा सैयदा तैयबा ताहिरा जनाबे बीबी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की लख्ते जिगर सानिए ज़हरा ज़ैनब अलैहिस्सलाम थी। सुभान अल्लाह। यजीद ने उनको इसलिए छुपा रखा था कि दमिश्क के लोग जो हैं वो उनसे दूर रहें। जब दिन निकलता तो जो अमीर जादियां जर्नेलों की बीवियां उस कैद खाने के पास आती तो वो देखती कि कैदी जो हैं वो इधर उधर किसी बात में मशगूल नहीं, बल्कि उनके सर सजदे में है, अल्लाह की याद में उनके दिन रात गुजर रहे हैं। तो वो औरतें खड़ी होके सईदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा से सवाल करती कि आपको आपकी ये हालत क्यों इस तरह हुई है? हमें तो पता चला है कि कोई कौम के बागी आ रहे हैं, नऊज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तो सईदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया कि हम बागी नहीं, हम तो आपके सबके जो नबी हैं और हमारे जो नाना मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं उनका, जिनका आप सब ने कलमा पढ़ा है, हम उनकी औलाद में से हैं। हम कोई गैर नहीं, बल्कि यजीद ने एक दुनिया के लालच में हमारे नन्हे शहजादों को भी हमारी आंखों के सामने कत्ल कर दिया, वो शहीद हो गए, बड़े बड़े जुल्म किए। इस तरह जब वो औरतें ये बातें सुनती तो जो यजीद का प्रोपेगेंडा है उसका पर्दा फट जाता। और अल्लाह वाले फरमाते हैं कि जब अल्लाह से सच्ची यारी लग जाए तो फिर जो हक की आवाज उठाई जाती है उसके अंदर उसकी और उसके प्यारों की नजर करम और ताकत होती है। तो फिर इसी ही तरह सईदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने जब उन औरतों को अपने बारे में फरमाया और अपनी शानों के बारे में तबलीग फरमाई और अल्लाह के दीन की तबलीग फरमाई, तो वो अमीर जादियां घरों में जाके रोती चीखती और ताने देती और लानते बेचती। इसी तरह यजीद जो था अपने दरबार में बड़ी मजे की जिंदगी गुजार रहा था। यजीद की बीवी और बच्चों को पता चला तो उन्होंने भी लान तान शुरू कर दी और हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा उस कैद खाने की हाक पर बैठकर तमाम दमिश्क को हुसैनी बना रही थी। ये एक ऐसी खैरात थी जो कि वो सब में अपनी चाहत की और अब इस आले नबी रसूल की मोहब्बत की जो खैरात हुसैनी थी उसको बांट रही थी। यजीद का तख्त जो तलवारों के साए में था वो अंदर ही अंदर से खोखला हो रहा था। सो आए मेरी बहनें इस बात की तरफ जरा गौर तो करें कि सच तो सच ही होता है, तो जो झूठ होता है वो मिटने वाला और जो सच है वो क़यामत तक कायम रहने वाला। ऐसा सच था कि जिसकी कोई मिसाल दुनिया में मिल ही नहीं सकती। तो फिर आज हमें अगर कोई छोटी सी तकलीफ आ जाए तो हम मसल्ले छोड़ देते हैं, ये कहते हैं कि हालात साजगार नहीं, ये सदमा, ये परेशानी है, कैसे अल्लाह को याद करें, क्या करें। तो वो भी तो अल्लाह वाले थे जिन्होंने इतनी तकलीफें, इतनी आजमाइशें और सिर्फ तकलीफें आजमाइशें ना देखी, बल्कि अपने जो जवान थे, नौजवान थे, जो बुजुर्ग थे, उनको अपनी आंखों के सामने शहीद होते हुए देखा, बच्चों को गोद में तड़पते हुए देखा, लेकिन इसके बावजूद भी हक का नारा जो था वो बुलंद आपने हर मुकाम पे आपकी औलाद ने किया। तो ये सब कुछ जब हो रहा था तो फिर यजीद को पता चला कि मेरी तो हुकूमत को और मेरे सारे मंसूबे को धचका बड़ा सख्त लग रहा है। उसने एक और चाल चली, तो उसने ये कहा कि मैं तमाम
अहले बैत को आज़ाद करता हूँ कैद खाने से, तो इन्हें मदीने शरीफ पहुँचा दिया जाए। जब हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने ये सब कुछ सुना तो आपने फरमाया कि नहीं, मैं उतनी देर तक दमिश्क से अपना कदम नहीं बाहर निकालूंगा जब तक कि हमारी अमानतें जो हैं उनको वापस न किया जाए। तो यजीद ने कहा कि कौन सी अमानतें? मैं आपको बहुत सारा मालो दौलत दे देता हूँ, जाके तो ऐश की जिंदगी गुजारे। तो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम उस वक़्त पुकार उठे, ज़ालिम, हमें दुनिया के माल की कोई परवाह नहीं, हमें वो सर चाहिए जो हमारे प्यारों के जिस्म मुबारक तो करबला की ज़मीन पे हैं और सर तूने ज़ब्त कर लिए हैं। उसने सर मुबारक क्यों ज़ब्त किए थे? सिर्फ उनको अजायब घर में लोगों को देखने के लिए वो उसने उनको रखा हुआ था कि मैं उनको किसी ऐसी जगह पे सजा दूंगा, वहां पे जब दूसरे मुल्कों के वजीर मशीर कोई भी मेरे दोस्त आया करेंगे तो मैं उनको दिखाऊंगा कि ये हैं वो, कि जो एक बागी थे तो उनको ये सजा मिली, अस्तगफिरुल्लाह। लेकिन उसको ये पता नहीं था कि मेरी हुकूमत तो चंद साल, चंद महीने, चंद घड़ियों की है। तो मैंने जिनको मिटाने की कोशिश की है उनका नाम तो पहले दिन भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और क़यामत तक रहेगा। तो इसी तरह लिखने वाले लिखते हैं कि हुसैन जिंदाबाद है, हुसैन जिंदाबाद है, हुसैन जिंदाबाद है। तो फिर जब आपने ये मुतालबा फरमाया तो फिर जालिम को सर देने पड़े। जब आपने सबके मुकद्दस सरों को लिया तो फिर उनको लेके आप सारा काफिला मदीने शरीफ जाने की बजाय दोबारा कब्रस्त वो करबला की तरफ गए। वहां जाके तो जो जिसका सर मुबारक था उसको उसके साथ रख के तो उनको दफन कर दिया गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।